जय जिनेन्द्र, मैं डॉक्टर शशि मंडोत, को कन्वीनर प्रोजेक्ट मंचले 2 जीतो परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। Good afternoon, everyone. A warm and cordial welcome to the esteemed galaxy of dignitaries present in this webinar today. We really feel delighted to have the graceful presence of Jito Apex Director, Ms. Suman Bachawat, Jito National Chairperson, Ms. Sunita Bohra, National Committee members, Chapter Chairpersons, our guest of honor, Dr. Dhuru Shah, and all of my friends who have joined today's session, Pan India. My sincere gratitude to Dr. Vijay Lakshmi, the renowned gynecologist who gave us the opportunity to invite Dr. Dhuru Shah. My profound gratitude to Dr. Shah for accepting our invitation and to be with us to enlighten all of us on PCOD, and it's definitely going to be a wonderful evening. Before we begin, let's pray for our spiritual enhancement by joining hands for chanting Navkar Mantra. We are greatly honored and truly delighted to have our Apex Director, Ma'am Suman Bachawat, with us. Under her dynamic leadership and committed efforts, Jito family is endeavoring hard to touch new heights. I request Ma'am Bachawat to address all of us. Ma'am Bachawat. Sadar Jai Jinendra to all of you. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani, Mangalam Stuli Bhadradya, Jain Dharmostu Mangalam, Jain Dharmostu Mangalam. Respected JLW Chairperson Sunita Ji Bohra, Sonali Ji Chief Secretary, आज के एस्टीम गेस्ट डॉक्टर धुरू शाह और वाइस चेयरपर्सन मीनल जी, ललिता जी और सेक्रेटरी शीतल जी, शिल्पी जी, ट्रेजरर हमारी जयश्री जी और सभी पूरी की पूरी जो टीम है, तृप्ति जी, शशि जी जो आज की मॉडरेटिंग कर रही है वो, और पूरी एंटायर JLW की टीम को मैं बहुत बहुत पहले तो अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि सुनीता जी आप सोते हैं कि नहीं सोते हैं। आप पूरी कोर कमेटी के साथ में ऑलवेज इतना हार्ड वर्क करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट लाते हैं और इतने अच्छे वेबिनार करते हैं और हमेशा आपके मन में एक कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने की और डेवलपमेंट की कि लेडीज का कैसे ग्रोथ हो, कैसे अवेयरनेस हो, इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आप ऑलवेज लाते हैं। और आज का जो PCOD का जो आप लेकर आए हैं वेबिनार, उसमें मैं डॉक्टर धुरू शाह का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और उनसे हम लोग आज जानना चाहते हैं कि ये PCOD क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। पहले जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो हम लोग नहीं जानते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी लेकिन हम लोग अवेयर नहीं थे कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने इतनी ज्यादा जो इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतनी तरक्की कर ली और हम लोगों को सबको ये चीज पता है और आज हमारे साथ डॉक्टर हमारे मौजूद है और उन्होंने अपना जो वैल्यूएबल टाइम हमको दिया है उसके लिए हम उनको थैंक्स कहना चाहते हैं और हम उनसे सुनेंगे ये PCOD क्या है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मुझे जितना पता है कि मूड स्विंग होना है या टायर्डनेस होती है, वेट लॉस होता है या इररेगुलर मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल होता है, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इसकी वजह से होती है, हो सकती है, हो रही है। तो उसके बारे में आज हमारे डॉक्टर हमको बताएंगे, अवेयर करेंगे और आज आप लोग सब उसका बेनिफिट लेंगे और लाइफ में आप अपने जो ये प्रॉब्लम से निजात पाके और ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे और हेल्दी वेल्दी रहेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ थैंक यू सो मच। Thank you, Suman ji. Your words always provide a stimulating environment and encourage us. I now request our national chairperson, very energetic and committed, Ma'am Sunita Bohra, to say a few words. Ma'am Bohra. Yeah, Jai Jinendra to all the Jito Apex dignitaries present here. And today's esteemed guest, Dr. Dhuru Shah, Dr. Vijay Lakshmi Ganorkar, who has joined us today.
all my national committee members of JLW and all Jito Ladies Wing members who have joined all across chapters pan India. So Jai Jinendra to all of you and Sadar Pranam. As you all know that we have all gathered here to get enriched by the valuable health insights which Dr. Durusha is going to share with us. So let's resolve that the best takeaway from today's webinar is that we need to focus on our health. That's very important. Friends, if you don't make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness. So good health is not something which we can buy. However, it can be extremely valuable savings account. Physical fitness is the first requisite of great happiness. So let's all be attentive related to today's session, related to PCOD and its symptoms, and help our family and our daughters and ourselves to be healthy. Thank you. Thank you, Sunita ji. It's always a pleasure to listen to you. It's always a pleasure to listen to you and get charged. You always inspire us. Today, Jito Ladies Wing is extremely proud and delighted in rolling out its initiative under the project Manjile 2 with the session on PCOD, a common issue that affects women in their reproductive age. The issue be taken seriously and dealt carefully. To be fit and healthy is the magic mantra. A style statement of everyone today, be it young or old, and we are definitely fortunate that Dr. Durusha, the renowned gynecologist, is here to enlighten us. Though her name needs no introduction, but to know more about her work, I invite Ms. Garima Sipani, project convener, to give a brief introduction of Dr. Durusha. Ms. Garima Sipani. Thank you, Dr. Shashi, and Jai Jinendra and Sadar Pranam to all the Apex dignitaries, all the guests, Dr. Durusha. My heart swells with awe and wonder upon reading the achievements of this magnanimous lady who has been an achiever in the truest sense. The two punctuation marks in her life of childbirth certainly did not slow her down. To sum up her life accomplishments of this obstetrician and gynecologist in 2 minutes was indeed a very difficult task. Currently, she is the director of Gynac World, the Center for Women's Health and Fertility in Mumbai, founder and managing trustee, Women's Empowerment Foundation, founder president, PCOS Society of India, which she represents to the International Societies of Gynecological Endocrinology, member of International Advisory Panel for Center for Research Excellence in Polycystic Ovary Syndrome, country representative to Asia Pacific Initiative on Reproduction, director, Digital Education International Menopause Society. In Mumbai, she is a consultant obstetrician and gynecologist at Breach Candy, Hinduja Healthcare, and Jaslok Hospitals. These are just a few of the past notable positions she has nationally and internationally held. Her service to mankind has been very well rewarded in the form of Presidential Recognition Award from the International Menopause Society for her outstanding service to the society. She is the first and only Indian to receive the prestigious FIGO Distinguished Merit Award for service towards women's health from FIGO, Rome, Italy. She has been awarded the top 20 women achievers of the Indian Healthcare Award, India, in March 2008. These are just a few of the various awards that she has received nationally and internationally and made us all very proud. Amongst the social activities, Dr. Shah's passion has always been to focus on the adolescent reproductive and sexual health. Based on her experience of working in the area, she has been able to include this topic in the school curriculum through the Government of India. Dr. Shah and her team have created a unique app called Tushi Tosk for the adolescent on reproduction and sexual health, which is currently available in 5 languages
and is free to download on both App Store and Play Store. So, dear ladies, without any further ado, let us all hear it from Dr. Durusha. Thank you, Garima ji. And as the saying goes, good health is a blessing and healthy citizens are an asset. So let's not become a hurdle between audience and Dr. Shah. And now I request our guest of honor, our eminent speaker of today's session, the well-known Dr. Duru Shah, to tell us everything about PCOD. Dr. Shah. Thank you very much, everyone, for having invited me. First of all, thank you to Dr. Suman and Dr. Sushma, who have, Dr. Shashi, sorry, and Suman, who have been invited to this very, very important meeting of the Jito community. To be honest, this is the first time I heard of Jito, and I was very pleasantly surprised about this organization of 14,000 women who are focusing themselves on various social activities. So I think I would like to share my screen and talk to you about what are the different areas we discuss in where it comes to PCOS or polycystic ovaries. So we have the can you see my screen? Yes. Yes, doctor. Yes, thank you. So since I've already been introduced before, I'm going to go straight into the topic of discussion. And the topic is unraveling the puzzle of PCOS, wherein we have a situation where everyone talks about PCOD, and which it was called in the past, it was the polycystic ovarian disease. But today we know that this is not a disease, it is a syndrome. It is a collection of symptoms which occur wherein a woman is known to be suffering from this particular problem. So if I go back into what's happening in the US, even if you look at what's happening in the US you have a situation where they did a survey. They did a survey with the American College of Gynecologists way back in 2015 to find out how many of them know what is PCOS. Here we are talking about patients understanding PCOS, but you must understand how many doctors. Can you speak in Hindi? I will try my best. Because my slides are in English. Please, yes. Completely you want me to speak in Hindi? Please try it. Or a few sentences in Hindi? Yeah, mix. Okay, mix I will okay, try. doctor. Mix is okay. Mix is okay. Okay. तो PCOS क्या होता है? मीन्स आपने बताया कि PCOD है, मगर PCOD नहीं कहते हैं. PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. ये एक डिजीज नहीं है जिसे हम दवा से ठीक कर सके. ये एक सिंड्रोम है, मतलब एक कलेक्शन है अलग अलग सिम्टम्स के, अलग अलग प्रेजेंटेशंस के. और इतना कंफ्यूजन है क्योंकि ये एक सिंड्रोम मतलब बहुत ही सिर्फ 10-15 साल से हम जानते हैं कि ये है विमेन में, और किस तरह से अलग अलग चीजें कनेक्टेड हैं. आज तक तो हमें पता नहीं क्यों ये होता है, क्यों लेडीज को ये प्रॉब्लम होता है, मगर वी नो कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं which I will discuss later, कि किस तरह की बीमारियां अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे आपको PCOS हो. अभी ये एक स्टडी 630 डॉक्टर्स के साथ अमेरिकन कॉलेज जो अमेरिका में है, वहां पे उन्होंने डॉक्टर्स को एक क्वेश्चनर भेजा. वो क्वेश्चनर में वो पता लगाना चाहते थे कि इसमें पेशेंट को क्या क्या मतलब क्या मतलब वो कैसे डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को PCOS है. तो उसमें रिजल्ट ये आया कि 30% मतलब 30% डॉक्टर्स को पता नहीं था अमेरिका में इन 2015 कि हम डायग्नोज कैसे करते हैं PCOS को.
पेशेंट को कैसे पता चले कि उसे पीसीओएस है? इतने सारे डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट को ये भी पता नहीं था कि पीसीओएस में डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है और वेरियस अदर इश्यूज। द मोर देन 85% को ये पता नहीं था कि ये पेशेंट्स को प्रॉब्लम मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है। और सिर्फ 50% डॉक्टर्स पेशेंट्स को रेकमेंड करते थे कि आप अपना वजन उतारो या लाइफस्टाइल चेंज करो, अब ज्यादा हेल्दी रहो। So this is what was the situation in America in 2015 जब उन्होंने डॉक्टर्स को सर्वे किया। तो इस सर्वे से ये कंक्लूजन हुआ कि फिजिशियंस या तो डॉक्टर्स की भी एजुकेशन बहुत ही जरूरत है। We must make sure that पेशेंट्स को पूरी केयर मिले, कंसिस्टेंट केयर मिले, जब तक वो मतलब जब से पीरियड चालू होता है और जब तक पीरियड रहता है उनको ये तकलीफ, ये जो सिंड्रोम है उसका ध्यान रखना चाहिए और पूरी जिंदगी उनको ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो इसलिए दुनिया भर में जो डॉक्टर्स, गायनेक्स की एसोसिएशन थी, नॉट ओनली गायनेक्स, इवन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब स्किन स्पेशलिस्ट और ऑल द डॉक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो लेडीज को मतलब उनका हेल्थ देखती है, तो उसमें से 37 ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर में है, उसमें अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स हैं। मैंने जैसे बताया गायनेक, फिजिशियंस, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, 3000 फिजिशियंस एंड विमेन जिसको पीसीओएस है, सबको इन्वॉल्व किया। एंड आई वाज हैप्पी दैट मैं भी एक डॉक्टर थी वहां पे जब हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि पीसीओएस कैसे डायग्नोज होना चाहिए। और ये डायग्नोज इस तरह से किया कि जो रिसर्च होता है पीसीओएस में, जो हमारे मेडिकल जर्नल्स रहते हैं, उसमें सब लेटेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे रिसर्च स्टडी हुई, क्या क्या स्टडीज हुई, कैसे उसका रिजल्ट आया। उसके बेसिस के ऊपर ये रिकमेंडेशंस या गाइडलाइंस बनी हुई है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थी। इट वाज लेड बाय एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक दूसरी रिसर्च सेंटर है जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ, अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी एंड पीसीओएस सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ। हमने सब ने मिलके ये रिकमेंडेशंस बनाए हैं दुनिया भर के डॉक्टर्स के लिए कि हमको पीसीएस कैसे डायग्नोज करना चाहिए। डायग्नोज का मतलब हम कैसे कंक्लूजन पे रीच करें कि ये लड़की को या ये लेडी को पीसीओएस है। तो उसमें 3 चीज की जरूरत होती है। एक तो पेशेंट को पीरियड इरेगुलर आना चाहिए। सेकंड इज उसे बहुत सारे पिंपल्स हो फेस के ऊपर, या तो बाल हो फेस के ऊपर, जहाँ पे लेडीज को बाल नहीं होते हैं, जैसे अपर लिप पे, चिन पे, जैसे मुस्टैच रहती है, बियर्ड रहती है, उस तरह के एरिया में थिक हेयर हो तो हम कहेंगे कि इसको हर्सुटिज्म है। या तो सर से बाल निकल रहे हो, मैं इसकी डिटेल्स बता दूंगी आपको। और थर्ड थिंग इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज, मतलब पीसीओएस ऑन सोनोग्राफी। जब लेडी सोनोग्राफी करती है उसमें यूजुअली डॉक्टर्स जो करते हैं सोनोग्राफी उसमें लिखते हैं कि आपको पीसीओएस है। जो मेनी पेशेंट्स उसको पीकॉस बोलती हैं, इट इज एक्चुअली पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अभी इसमें से एटलीस्ट 2 चीज होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को पीसीओएस है। अगर सिर्फ एक चीज है ये तीनों में से, तो फिर भी हम डायग्नोसिस पीसीओएस का नहीं देते हैं। सो इफ वी गो टू इरेगुलर पीरियड्स में ये मतलब है कि अगर पेशेंट को हर 15 दिन से पीरियड आता है, या तो 21 दिन से कम में पीरियड आता है, या तो अगर 35 डेज के ऊपर पीरियड आता है, मीन्स कभी 40 डेज, कभी 45 डेज, कभी 60 डेज, ऐसे करके कभी जल्दी कभी आगे ऐसे होके पीरियड आता है, या तो पूरे साल में 8 पीरियड से कम होते हैं, या तो फिर 15 साल तक लड़की को पीरियड नहीं हुआ, देन वो जब डॉक्टर के पास जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तब पता चलता है कि इसे शायद पीसीओएस है।
तो इरेगुलर पीरियड्स का ये मतलब होता है कि जब हम हर्सुटिज्म की बात करते हैं, हर्सुटिज्म मतलब जैसे ये बाल दिख रहे हैं चिन के ऊपर, चीक के ऊपर, जो लेडीज को ऐसे बाल होते हैं, जो सॉफ्ट हेयर हर लेडी को होता है, दैट इज नॉर्मल। पर ये जो बाल है, इट इज लाइक अ मुस्टैच और अ बियर्ड, थिक है, जैसे आईब्रोज में हेयर होते हैं। या तो फिर उसे देखिए, ये सेम पेशेंट है जिसकी पूरे नेक के ऊपर है, और ऐसे पेशेंट्स को इतनी ही बाल लगते हैं कि कभी कभी उन्हें रोज शेविंग करना पड़ता है उनको। अभी देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स फॉर इट, वो हम बाद में बात करेंगे। मगर इस टाइप का पैटर्न हेयर का हो, या तो चिन में हो, अपर लिप में हो, ब्रेस्ट के निपल्स के अराउंड हो, मिड लाइन ऑफ द चेस्ट मीन्स छाती के ऊपर मिड लाइन में हो, या तो पेट के ऊपर मिड लाइन में हो, मतलब जैसे जहां पे भी मेन को बाल होते हैं, अगर वैसे थिक जाड़े बाल आते हो, थोड़े भी आते हो, अगर 3-4 भी आते हैं, फिर भी से हम कहते हैं कि इसको शायद हिर्सुटिज्म है। द वर्ड इज मेडिकल हिर्सुटिज्म। ये एक्नी का पिक्चर दिखता है, जैसे कितनी सारी एक्नी या पिंपल्स हो जाते हैं कि ये लड़कियों को इतनी तकलीफ होती है बाहर जाने के लिए, क्योंकि दे फील के बॉडी इमेज अच्छा नहीं लगता है उनका। इसके लिए वो कभी कभी डिप्रेस हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, एंड दे वेरी मतलब किसको मिलना नहीं चाहती है, दे ट्राई टू रिमेन इन देयर होम्स, दे डोंट गो आउट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये इसके वजह से हो सकता है। The third is alopecia. Alopecia का मतलब सर से बाल झड़ रहे हैं, और इस टाइप के लॉस हो सकते हैं। Then when it is an early loss, मतलब right in the beginning, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बाल निकलने लगे हैं, फिर जैसे प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, the whole thing spreads even more, और फिर यहाँ पे तो देखिए पूरा यहाँ पे बॉल्ड हो गया है। So this is called female pattern of hair loss. अभी आप जेंट्स में देखो तो यूजुअली बाल आगे से जाके पीछे तक जाते हैं, या तो पूरे सर में जाते हैं, या तो फिर पीछे से जाते हैं, बट दिस इज टिपिकली व्हाट वी सी इन विमेन। इसको हम फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस कहते हैं। फिर अगर अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी आप करें, इस सोनोग्राफी में 2 चीज हम देखते हैं, या तो ओवरी की, ये ओवरी है सोनोग्राफी में, इफ यू सी दिस इज द होल ओवरी ऑन सोनोग्राफी। ये साइज ओवरी की बढ़ जाती है, it becomes more than 10 ml. 10 ml मतलब 10 cc's, और मतलब 2 टीस्पून जितना अंदर मटेरियल है। तो अगर नॉर्मल साइज होता है 1 टीस्पून जितना, मगर 2 टीस्पून से ज्यादा हो गया तो मतलब 10 ml हुआ, वो एक कारण रहता है जिससे हम PCOS कहते हैं। और अगर ये जो छोटे छोटे आप सिस्ट देखते हो, ये एक्चुअली सिस्ट नहीं है, ये एग्स हैं, जिससे जब एग निकलता है, जब ओव्यूलेशन होता है, जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये एग्स हैं, मगर इसमें ये ओवरी में 10-12 एग से ज्यादा हैं एट अ टाइम। उसमें हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये लड़की को सोनोग्राफी में शायद PCOS दिख रहा है। PCOS का मतलब 2 चीज कम से कम होनी चाहिए। अगर ये पेशेंट को सोनोग्राफी में सिर्फ ये एक मतलब ओवरी में ऐसा दिखे, और पेशेंट को नॉर्मल पीरियड है, और कुछ बाल नहीं है फेस के ऊपर, कुछ पिंपल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसे हम PCOS नहीं कहते हैं। इससे हम सिर्फ कहते हैं कि इसके सोनोग्राफी में हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख रहे हैं। फिर इसके पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ एक और चीज होती है कि 80% पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट को मतलब वजन ज्यादा होता है, और मेन थिंग इज यहाँ पेट के ऊपर बहुत सारी फैट जमा होती है वेस्ट लाइन के ऊपर। नाउ नॉर्मली विमेन का वेस्ट लाइन कम होता है, हिप्स ज्यादा होते हैं, मगर PCOS पेशेंट में इफ यू फाइंड 80% ऑफ द पेशेंट को ओबेसिटी रहती है, मतलब वजन बहुत ज्यादा होता है, और मेनली फैट यहाँ पेट पे जमा हो जाती है। एक और कंडीशन है जिसमें PCOS में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसका मतलब ये है कि जो बॉडी में इंसुलिन बन रही है, वो इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो इंसुलिन बॉडी में बढ़ते जाता है, और एक दिन ऐसे होता है कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज। तो ये जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, 50% PCO पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंसी होती है,
अगर वो पतली हो या ओबीज हो। मैंने बताया था 80% पेशेंट्स का वजन ज्यादा होता है और 20% पतली रहती है, मगर वेदर वो पतली है कि ओबीज है, फैट है, फिर भी 50% पीसीओएस पेशेंट को ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से ये पेशेंट्स का वजन कम करने में बहुत तकलीफ होती है। वो एक्सरसाइज करेंगे, डाइट करेंगे, जो भी करेंगे, मगर उनका वजन बहुत आहिस्ते आहिस्ते कम होता है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तब ये पेशेंट्स को ऐसे, ये जैसे आपको दिखता है यहाँ पे, इट इज ऑल ब्लैक, ये स्किन ऐसे डार्क हो जाती है और इट इज लाइक वेलवेटी टाइप वहां पे, और ये स्किन पे नेक में यूजली होता है, आर्मपिट्स में होता है, ग्रोइन में होता है। तो अगर ऐसे होता है, सिर्फ देख के हम पेशेंट को बता सकते हैं कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एंड दिस कैन बी करेक्टेड। ये सिर्फ इनको, पेशेंट को वजन कम करना पड़ता है और कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं जिससे ये पूरा क्लियर हो जाता है, और वो दवाइयों से वजन भी कम होने को चालू हो जाता है अगर पेशेंट अगर एक्सरसाइज करे और हेल्दी न्यूट्रिशन ले। So PCOS can start in the adolescent period, मतलब जैसे लड़की को पीरियड चालू हो जाता है तब से उसका प्रॉब्लम चालू हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी ओवरीज काम करने लगते हैं और इसलिए उसे पीरियड इरेगुलर आ सकता है। ये जो मैंने सब जो प्रॉब्लम्स बताए आपको, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसके वजह से मेंटली दे आर डिस्टर्ब्ड। रिप्रोडक्टिव पीरियड मतलब जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है, उसे कभी कभी प्रेगनेंसी होने में तकलीफ होती है, क्योंकि अगर उसके पीरियड 3 महीने से आएंगे, 2 महीने से आएंगे, तो नेचुरली हर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट रिड्यूस, क्योंकि हर औरत को बीज 1 महीने में एक बीज निकलता है और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो सकती है जब बीज निकलता है। मगर अगर 3 महीने में पीरियड आएगा, मीन्स 3 महीने में एक ही बार बीज निकलता है, तो इसलिए उसके चांसेस प्रेगनेंसी होने में, मतलब साल में सिर्फ 4 टाइम चांस मिलता है, और अगर जो पेशेंट को हर महीने पीरियड आता है उसे साल में 12 टाइम्स चांस मिलती है प्रेग्नेंट होने के लिए, इसलिए उसको प्रेग्नेंट होने में कभी तकलीफ हो जाती है। और अगर प्रेग्नेंट होती भी है, बिकॉज जो हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, उसके वजह से देयर इज अ हायर चांस ऑफ लूजिंग द प्रेगनेंसी, मींस मिसकैरेज हो सकता है। एंड थर्ड इज प्रेगनेंसी में ये पेशेंट्स को देयर इज अ हायर चांस कि उनको डायबिटीज हो जाती है या तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। द थर्ड एरिया इज व्हेन द वुमन बिकम्स 40+, मतलब वो 40 साल और ऊपर की हो गई, शी कैन डेवलप मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब उसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी मतलब वजन बढ़ते रहना, पीरियड के प्रॉब्लम्स, और आगे चल के जब पीरियड बंद भी हो जाता है तब भी यूट्रस का कैंसर हो सकता है। एंड ओवर एंड अबव ऑल दिस इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स वजन बहुत बढ़ जाता है और दैट इज नॉट गुड फॉर द पेशेंट। तो अब ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? मेन थिंग वी हैव टू सी इज दैट हमारी गोल क्या है, क्योंकि हमें आज कोई क्योर नहीं है ये पेशेंट्स के लिए। वी डोंट हैव एनी मेडिसिन के हम ये बीमारी को कंप्लीटली निकाल सके। इट इज लाइक दिस कि किसको अगर ब्लड प्रेशर हुआ, किसको अगर डायबिटीज हुआ, all that we can keep under control. Blood pressure you can keep under control by taking medication, या तो फिर लाइफस्टाइल चेंज करना है, स्ट्रेस कम करना है। सेकेंड इज जो पेशेंट्स को डायबिटीज है वो शुगर बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे शुगर कंट्रोल में रहता है। मगर अगर बीमारी है तो दवा लेना जरूरी है। तो इस पीसीओएस में सिंस हमें कोई परमानेंट क्योर नहीं है, इसलिए हमारा गोल ये रहता है कि हम ये जो पीरियड इरेगुलर है पेशेंट को, क्योंकि लड़कियों को जब पीरियड इरेगुलर होता है, 3-4 महीने पीरियड नहीं आता है, फिर इतना हैवी आता है कि फिर बंद नहीं होता है, और फिर लड़कियों, छोटी छोटी लड़कियों का हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता है 5 ग्राम 6 ग्राम तक, कि फिर उनको ताकत नहीं रहती है कुछ खेल करने के लिए, कि कुछ पढ़ाई करने के लिए। इट अफेक्ट्स देयर एकेडमिक वर्क। सेकेंड थिंग इज के हमें ये पिंपल्स और हेयर ग्रोथ को कम करना है,
और ये जो हेयर लॉस सर पे हो रहा है, वी हैव टू कंप्लीटली रिमूव, कंप्लीटली ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। थर्ड थिंग इज वी हैव टू एड्रेस कि ये जो लड़कियों को जो स्ट्रेस होती है उसको हम कैसे मैनेज करें। एंड फोर्थ इज हम ओबेसिटी या तो वजन हम कैसे उसको कम रखें। सो ये हमारे गोल्स हैं ये पीसीओएस पेशेंट में, एंड दैट इज व्हाई पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ही जरूरी है, पेशेंट को तपास करना जरूरी है, और पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, मेंटल स्टेट क्या है, क्या क्या तकलीफें है उसे, तो वो सब के लिए वी हैव टू मेक श्योर के वी करेक्ट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो अभी जब पीरियड इरेगुलर है हम क्या बताते हैं पेशेंट्स को? पेशेंट्स को हम या तो हार्मोन टैबलेट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर पीरियड इरेगुलर है उसका मतलब ये है कि ओवरीज में से जो हार्मोन्स बन रहे हैं जिससे पीरियड रेगुलर आता है वो हार्मोन्स बराबर बन नहीं रहे हैं और उनकी इम्बैलेंस है, इसके लिए पीरियड भी बैलेंस नहीं रहता है, वो इरेगुलर आता है। अभी उसको ठीक करने के लिए हमें बाहर से जो हार्मोन्स हमको देने पड़ते हैं, क्योंकि जो हार्मोन कम है बॉडी में उसको हम ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें हार्मोन्स देते हैं। और दूसरा ये उपाय हार्मोन्स का है कि जो पेशेंट्स को बहुत ही बाल फेस पे होते हैं या बाल झड़ रहे हैं या तो पिंपल्स आते हैं, उसके लिए हमें मेल हार्मोन को कम करना है बॉडी में, क्योंकि वी मस्ट ऑल नो कि हर लेडी के बॉडी में फीमेल हार्मोन्स रहते हैं, मेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन ज्यादा रहते हैं, मेल हार्मोन कम रहते हैं। वाइल्स मेन में मेल हार्मोन ज्यादा रहता है और फीमेल हार्मोन कम रहता है। मगर ये जब बैलेंस बराबर नहीं रहती है तब सब प्रॉब्लम चालू हो जाता है। सो हमें हार्मोन देना पड़ता है ये ठीक करने के लिए। और एक चीज है कि जब मैं पेशेंट से मिलती हूँ, द फर्स्ट थिंग द मदर विल आस्क मी कि मेरी लड़की इतनी छोटी है, आप उसको हार्मोन्स देंगे, हार्मोन से कैंसर हो सकता है। दीज आर ऑल मिथ्स। ये सब हमें दूर रखना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू लुक एट इट कि हम पेशेंट को पहले ठीक तो करें। हम हार्मोन्स पूरी जिंदगी नहीं देंगे, वी डू इट इमीडिएटली टू पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिले, बिकॉज वी नो हार्मोन्स एक क्योर नहीं है, उसको सिर्फ कंट्रोल में लाना है। हम टेम्पररी कंट्रोल में लाने के लिए देते हैं कि जैसे पीरियड नॉर्मल आवे, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग नहीं हो, पेशेंट को तकलीफ नहीं हो, इसलिए हम हार्मोन्स देते हैं। और जैसे उसके पिंपल्स कम हो जाए, उसका बाल थोड़ा फेस पे कम हो जाए, so she also feels more confident to go out. So temporarily we are giving that until the patient loses weight. So weight reduction becomes the most important part of treatment. मतलब उसे वजन कम करना जरूरी है। जब वो वजन कम करेगी, जब बॉडी में से फैट कम हो जाएगा, तब वो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं, और इसलिए वजन कम करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड इज अगर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने बोला इट इज अ प्री डायबिटिक स्टेट, तो वो कम करने के लिए पेशेंट को ऑफ कोर्स अगेन उनको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, और अगर जरूर पड़े तो उन्हें हम दवा देते हैं जिसको हम इंसुलिन सेंसिटाइजर बोलते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प द पेशेंट कि जैसे उसको पीरियड रेगुलर आने लगे। एक चीज है कि जब पेशेंट अपना इवन 10% वेट अगर कम करे तो भी पीरियड ठीक आने लगते हैं। समझो एक लड़की है 16-17 साल की, उसका वजन समझो 75 किलोज है, विच इज वेरी हाई। उसकी हाइट है 5'5". अगर 5'5" में उसका वजन होना चाहिए मैक्सिमम, इट शुड बी 60 किलोज, नॉट मोर। और अगर 75 है तो इट इज टू मच, और उसके पीरियड इरेगुलर हो। अभी उसको हम बोलेंगे आप 10% सिर्फ अपना वजन कम करो, मीन्स ओनली 7 to 8 किलोज अगर वो कम करेगी तो उसके पीरियड विल स्टार्ट कमिंग नॉर्मली। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर कि जब तक वो वजन कम करे तब तक वी हैव टू सपोर्ट हर। अगर हम ऐसे जो दवा देंगे और उसको वो वजन कम नहीं करेगी तो वो दवा हमेशा के लिए चालू ही रहेगी, मगर अगर वो वजन कम करेगी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प हर टू गेट हर पीरियड्स रेगुलरली। So this is what we advise. Coming to acne or hair growth, अगर acne means pimples and hirsutism मतलब वो facial hair, उसके लिए तो बहुत सारे cosmetic options हैं। लेजर है, रिमूवल है, क्रीम है, थ्रेडिंग, प्लकिंग, वैक्सिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, सब कुछ है। मगर अगर बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा है तो हार्मोन के वजह मेल
हार्मोन के वजह से वो बाल जो पे नॉर्मली रहते हैं दे कीप बिकमिंग लाइक मेन टाइप ऑफ हेयर, वो थिक हेयर। तो जितना भी आप निकलते रहो उतना ज्यादा आते ही जाएगा। इसलिए सिर्फ लेजर और ये कॉस्मेटिक रिमूवल हेल्प करने के लिए है इनिशियली, टू हेल्प द पेशेंट के उसकी अपीयरेंस ठीक हो एटसेट्रा, मगर साथ साथ में दवा देना जरूरी है जिससे उसका मेल हार्मोन अंदर बॉडी में कम हो जाए। वजन कम करने से भी मेल हार्मोन कम होता है, मगर जब तक वो अपना वजन कम करेगी उसको भी टाइम लगेगा। शी हैज टू बी केप्ट ऑन सम मेडिसिन्स टू हेल्प हर टू रिड्यूस द मेल हार्मोन। तो वो जो टैबलेट्स जो हैं वो हम देते हैं यूजली, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो लेडीज लेती हैं, वो टैबलेट्स आर वेरी गुड टू ब्रिंग डाउन द मेल हार्मोन, उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एंड सेकेंड इज देयर आर मेडिसिन्स व्हिच वी गिव जिससे मेल हार्मोन कम होता है। तो वो मेडिकेशंस द डॉक्टर्स विल एडवाइज, वो हम पेशेंट्स को खुद ही लेने के लिए नहीं एडवाइस करते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। द थर्ड इज मेंटल हेल्थ इश्यू। बहुत सारी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, मूड स्विंग्स, अगर किसके भी घर में अगर पीसीओएस की कोई यंग गर्ल हो और उसे ये प्रॉब्लम्स हो, दे विल रियलाइज एज इट इज टीनेज में गर्ल्स बिकम गेट वेरी मूडी, स्पेशली पीरियड के पहले, दे आर ऑलवेज फाइटिंग विद देयर मदर्स। सो इन शॉर्ट दिस इज व्हाट कैन हैपन कि अगर पीसीओएस है, एंजाइटी है, वजन ज्यादा है, they'll find themselves not looking very attractive because of all body image, इसके लिए उनको ज्यादा टेंशन और एंजाइटी हो जाती है। इस सिचुएशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स उसको सपोर्ट दें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लड़कियों के साथ आप ज्यादा बात करें, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल हेल्प हर, इफ नेसेसरी काउंसलर से मिले, डोंट जस्ट कीप शाउटिंग एट हर कि आप पूरा दिन रूम में बैठी रहती हो, पूरा टाइम टीवी देखती हो, पूरा टाइम लैपटॉप पे रहती हो, पूरा टाइम फोन पे रहती हो, क्यों? यू नो देयर आर मेनी पेरेंट्स हु कीप शाउटिंग। इवन जब हमारे रूम में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, क्लिनिक में, आई हैव सीन मेनी मदर्स टॉकिंग इल अबाउट देयर डॉटर्स, उसके सामने ही बताती हैं, इतनी कंप्लेंट करती हैं लड़कियों की, विच आई फील बैड, बिकॉज जितना ज्यादा आप ऐसे करेंगे उतना ज्यादा तकलीफ बच्चों को होगी। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि सपोर्ट करो अपने बच्चों को, दे आर सफरिंग, दे हैव गॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम, उसे हेल्प देम टू गेट बेटर बाय टेकिंग देम टू द रेलेवेंट डॉक्टर और उसे करेक्शन करिए। दिस स्टडी वी डिड नाउ कोविड के टाइम पे, हमने जो हमारे पीसीओएस पेशेंट्स हैं, देयर वर 440 पेशेंट्स, उनको हमने एक क्वेश्चनर भेजा ईमेल पे, और ये लेडीज थी 15 इयर्स टू 35 इयर्स, और एवरेज एज था वो पूरे ग्रुप का 23 इयर्स। तो उसमें से 368 वर अनमैरिड एंड 112 वर मैरिड। बिफोर द लॉकडाउन उनको 55% ऑफ देम हैड दीज इश्यूज। 55 मींस आउट ऑफ एवरी 2 गर्ल्स एक लड़की को ये सब प्रॉब्लम था मेंटल हेल्थ का। मतलब मेंटल हेल्थ मींस इट्स, डोंट मिसअंडरस्टैंड के she is not normal, it is only depression, anxiety and stress. और लॉकडाउन के बाद because they were stuck at home and सब घर में, एक ही घर में, स्पेशली जिसके छोटे घर हैं, सब एक घर में लॉकडाउन में, तो ज्यादा तकलीफ हुई वो बच्चों को, because they were not able to go out, कुछ प्रिवेसी नहीं थी, फ्रेंड्स के साथ कुछ बोल नहीं सकते थे, पेरेंट्स के साथ कुछ बोल नहीं सकते थे, तो इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ हो गई। उसमें से 63% को मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए। तो हम यही कहते हैं कि ये ओबेसिटी कम करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जितना भी सॉल्व हो सकता है, वो वजन कम करने से इज द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए हेल्दी न्यूट्रिशन खाना जरूरी है और एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। अभी हेल्दी न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऐसे कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं, इट्स लाइक अ फैशन। आज बोलेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, दूसरे दिन बोलेंगे हाई कीटो डाइट करो, थर्ड डे बोलेंगे हर 2 घंटे से खाओ। देयर आर डिफरेंट डाइट्स लाइक दिस, मगर ये सब के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन ऑल दीज डाइट्स, यू मस्ट रिमेंबर इज कि जितना आप खाते हो उससे ज्यादा आप उसको स्पेंड करो। मतलब बैंक में कुछ भी जमा नहीं होने दो, पेट के बैंक में
जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते जाते हैं और उसमें खर्चा नहीं करेंगे तो बैंक में पैसे बढ़ते ही जाएंगे, विच मेनी पीपल कैन डू। बट जब फैट की बात आती है, हम क्या बोलते हैं कि आप जितना खाते हो, जितने कैलोरीज कंज्यूम करते हो, वो कैलोरीज को निकालना चाहिए बॉडी में से। सो दैट इज द वे टू मेंटेन हेल्थ। तो अभी इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो आपको जानना जरूरी है। जो भी चीज फैटी है, मतलब फ्राइड है, डीप फ्राइड, भजियाज, वड़ाज, पूरीज, दैट इज वेरी बैड। यूजुअली द 3 कम्युनिटीज जो ज्यादा फ्राइड चीज खाते हैं, आप पंजाबीज, मारवाड़ीज एंड सिंधीज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्राइड फूड दे ईट। तो मतलब उसमें क्या है, जब आप फ्राई करते हो उसमें बहुत ही ऑयल जाता है और ऑयल के वजह से फैट होता है और फैट से आगे जाके वजन बढ़ता है। इसलिए हमें जो खाना चाहिए इज वेरी लो, मतलब ये डीप फ्राइड थिंग्स नहीं खानी चाहिए, तेल कम करना चाहिए। इसके लिए तो वो आजकल यू गेट दोस फ्राइंग पैन्स वेयर यू जस्ट स्प्रे द ऑयल, उसमें कम ऑयल यूज करता है। और फिर ज्यादा कुकिंग नहीं करना चाहिए, ज्यादा ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए। जैसे टेस्टी तो हो जाता है फूड, आई एग्री विथ यू, मगर उससे वजन ज्यादा बढ़ता है। जो मीठी चीज है लाइक अपना केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, मिठाई, शीरा, all that has to be stopped and you have to eat food which is low, like say आप bread अगर खा रहे हो, white bread मत खाइए, you have mixed grain bread, ज्यादा दाल्स खाइए, you can have soya, you can have all the different आटाज you get nowadays, जवार, बाजरी, इस टाइप के फूड खाइए तो उसमें हेल्दी डाइट हो सकती है। फ्रूट्स खा सकते हैं, मगर एक तरीका रहता है जो खा सकते हैं, जो नहीं खा सकते हैं, इसलिए कि कैलोरीज काउंट आपको कम रखना है। एंड इसके लिए एक्चुअली इन माय क्लिनिक आई गिव द पेशेंट्स अ चार्ट कि आपको ये खाने में इतने कैलोरीज है, ये खाने में इतने कैलोरीज है, बिकॉज सो मेनी पेशेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। बोलते हैं डॉक्टर नहीं, मैं थोड़ा भेल खा लेती हूँ स्नैक में। अभी भेल में क्या होता है? भेल में सेव रहते हैं विच आर फ्राइड, पूरीज रहते हैं विच आर फ्राइड, पोटैटोज रहते हैं और something else also fried. So उसमें if you have one plate of भेल, आपके automatically 250 calories उसमें चले जाते हैं। You eat one Cadbury's chocolate, you get 400 calories. You eat one plate of batata vada, you have got 350 calories. So अगर पूरे दिन में आपको 1200 calories खानी है, तो अगर आप ये हाई कैलोरी फूड खाएंगे तो पेट तो भरेगा ही नहीं, then you will want to eat something else. So instead एक बोल पूरा सैलेड का खाओ, it is only 50 calories. एक बोल भर के आप ये काबुली चना बॉईल करके खा लो तो that is 50 to 60 calories. What I'm trying to say is जो भी फूड आप खाएंगे वो कैलोरीज गिन के खाओ, try and keep to 1200 calories, उससे आपका it will help you to maintain your weight. और अगर साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो it will help you to lose weight. So the exercise one has to do to lose weight is 1 hour every day of moderate exercise for 6 days in a week. उसमें 60 minutes में some patients say डॉक्टर मैं इतना एक्सरसाइज करती हूँ कुछ वजन ही नहीं कम होता है। I said आप क्या करते हो? तो बोले योगा। I said which yoga? Then they say breathing exercises, stretching exercise. अभी उसमें थोड़ी वजन कम होता है। If you do power yoga or if you do something where your pulse rate should increase, अगर आपका pulse rate 75-80 है, उसको 120 होना चाहिए तो आपका वजन कम होगा। जब तक आपको पसीना नहीं आए, जब तक आपका हार्ट रेट फास्ट नहीं हो जाए, you are not going to lose that weight. तो इसलिए जो एक्सरसाइज हम मॉडरेट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, that means your heart should beat faster so that you can lose weight. तो उसमें क्या आता है, या तो you walk very fast. अगर you walk at a speed of 6 kilometers an hour, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, definitely it is fast walk. अगर आप रन करते हो, अगर आप कथक डांस करते हो, आप भारतनाट्यम करते हो, उससे जो आपको पसंद हो, यू प्ले बैडमिंटन, यू प्ले टेनिस, यू प्ले स्क्वॉश, जो गेम्स में आपको दौड़ना पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, विद दैट यू आर गोइंग टू लूज वेट। तो इसलिए आपको स्ट्रेंथ, ये टाइप की ट्रेनिंग करनी जरूरी है। साथ साथ में मसल ट्रेनिंग, ओके, मसल स्ट्रेंथ या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जैसे ये लेडी कर रही है, शी इज डूइंग पुशअप्स।
उसमें सब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। तो अगर आप मसल्स ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और उससे वजन कम हो जाएगा। इसके लिए जो लीन पेशेंट भी हैं, जो पतली लेडीज भी हैं, वो कहते हैं मैं क्यों वजन कम करूं? नो, वी डोंट वांट टू लूज द वेट, मगर क्यों आपको इंसुलिन, बिकॉज यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको ये मसल्स ट्रेनिंग की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, एक्सरसाइज की जरूरत है। सो दिस इज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। और जो अगर आपका वजन नॉर्मल है और वजन नहीं बढ़ाना है, तो उसमें यू हैव टू डू 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक, मतलब 30 मिनट हफ्ते में, 5 दिन हफ्ते में हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज करना जरूरी है। और अगर आप ऑल्टरनेट डे करना चाहते हो तो 60 मिनट्स, दैट इज 1 hour एवरी ऑल्टरनेट डे आप करो, तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। और यू कैन डू 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्सरसाइज, मीन्स बहुत ही स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज, वो भी कर सकते हैं और मिक्स करके कर सकते हैं। और जो यंग गर्ल्स हैं उसको हम बोलते हैं कि 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज 3 times a week इज नेसेसरी। ये क्यों नेसेसरी हो गया है? क्योंकि हम ये आज के जमाने में वी आर स्टेइंग इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पे कुछ एक्सरसाइज नहीं होती है। वी आर यूजिंग द लिफ्ट टू गो अप एंड डाउन, वी आर यूजिंग रिमोट टू मूव चैनल्स, we are using remote for even putting on the lights, मतलब हर चीज के लिए there is no activity, और इसलिए हमें वो एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो गांव वाली लेडीज को बिल्कुल नहीं करना पड़ता है सेपरेटली एक्सरसाइज, क्योंकि उनके पूरे दिन में एक्सरसाइज हो जाती है। they are going to the farm, they are going to the well, वो सब उनका एक्सरसाइज हो जाता है, उनको सेपरेटली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। पर हमारे सिटी में स्पेशली मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर स्कूल जाते हैं, स्कूल में बैठते रहते हैं, मतलब स्टडीज के लिए, उसके बाद घर आते हैं, देन दे आर ऑन देयर टीवी, ऑन द कंप्यूटर, ऑन द फोन, देयर इज हार्डली एनीवन गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज। इसलिए अभी ये कोविड के टाइम पे इतने लोगों का वजन बढ़ गया, बिकॉज कोई भी बाहर नहीं जा सकता था और घर में कितनी एक्सरसाइज हो सकती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी इन टुडेज डेज। अगर आपको पीसीओएस हो के नहीं हो, you have to exercise, you have no choice. फिर हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। नेक्स्ट ग्रुप इज अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब women who are wanting to have children. अभी जो पीसीओएस है पेशेंट्स, उनको मतलब बीच ओव्यूलेशन हर टाइम नहीं होता है, जैसे समझो इनको इरेगुलर पीरियड है, तो मतलब उनको कम टाइम, मतलब हर 2 महीने में या 3 महीने में एक एग निकलता है, और इसलिए वो एक एग निकलता है, उसकी क्वालिटी शायद अच्छी भी हो, शायद अच्छी भी नहीं हो, वी डोंट नो। देन अगर मेल हार्मोन ज्यादा है बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन एग का बराबर नहीं होता है, मतलब एग और स्पर्म बराबर ज्वाइन नहीं होते हैं, इसके लिए फर्टिलाइजेशन कम हो जाता है, और जो एम्ब्रियोज उसमें से जो बनते हैं, मतलब जब एग और स्पर्म ज्वाइन हो जाते हैं, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, वो पुअर क्वालिटी का एम्ब्रियो होता है। थर्ड इज अगर देयर इज सम हार्मोनल हार्मोन्स बराबर नहीं है, तो फिर उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होता है, मतलब एम्ब्रियो अगर बन भी गया, वो यूट्रस में बराबर चिटकता नहीं है, क्योंकि लेडीज के हार्मोन्स बॉडी में नॉर्मल मतलब इम्बैलेंस्ड है, और इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट इज इफ इट इज, अगर बच्चा हुआ भी पेट में और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो मिसकैरेज होने का चांस ज्यादा है। और लास्ट इज वजन ज्यादा है, मेल हार्मोन ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सब डिस्टर्बेंस के वजह से जो पेट में बच्चा है, वो बच्चा अगर गर्ल बेबी है, वो आगे बढ़ के उसको भी पीसीओएस होने का चांस ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाई वी से कि प्रेगनेंसी के लिए बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट, प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, मेक श्योर कि सब सही है, आपके हार्मोन्स ठीक हैं, सब ठीक हैं, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए, एंड देन बी सक्सेसफुल। नहीं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मिसकैरेजेस में प्रेगनेंसी नहीं रहती है, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर। फिर इसमें हम लोग हार्मोन्स कवर हार्मोन को मैंने समझाया, यंग एज में सेम वे विल रिड्यूस ऑल दिस। अगर बीज नहीं निकला है, हर महीने पीरियड नहीं आता है,
वी गिव मेडिकेशन, मुंह से देते हैं या तो इंजेक्शन देते हैं, उससे भी हार्मोन्स दे के एग्स को बढ़ाते रहते हैं, एग्स को ओव्यूलेशन कराते रहते हैं। फिर जब बीज निकलता है, वी टेल द पेशेंट के अभी आपका बीज निकला है। वो हम जब सोनोग्राफी करते हैं उसमें पता चल जाता है कि बीज निकल रहा है या निकला है। उस टाइम में हम उनको बोलते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहो तो प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर अगर इससे भी नहीं हो, देन वी गो टू मोर एडवांस टेक्निक्स, which one is called IUI and one is called ART or assisted reproduction। अभी ये सब चीजों में क्या है कि पहले ओव्यूलेशन होना चाहिए, मतलब बीज निकलना चाहिए, और फिर द स्पर्म को हम एग के साथ में रखते हैं, और या तो बॉडी के अंदर ही होता है, पेशेंट के बॉडी के अंदर ही होता है तो IUI बोलते हैं। अगर पेशेंट के बॉडी के बाहर एग्स निकाल के उसको हम लैब में फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म के साथ, उसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और हर चीज का प्रेगनेंसी रेट अलग अलग होता है। बट व्हाट मीन्स, अगर हम जस्ट दवा ओरल मेडिसिन दे के प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं, चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट में बी अबाउट 7 to 8% एक महीने में। अगर हम इंजेक्शन देके ट्राई करते हैं तो उसको 10-12% साइकिल, मींस एक महीने में 100 पेशेंट में से 10 के 12 प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर साथ में हम IUI करेंगे तो फिर फ्रॉम 12% इट बिकम्स 20%, और अगर असिस्टेड रिप्रोडक्शन या IVF करेंगे तो इट गोज टू 40 to 50% पर साइकिल। इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। इट डिपेंड्स कि लड़की की उम्र कितनी है, हस्बैंड का स्पर्म कैसे है, लड़की के ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं, वो सब चीजों को ध्यान में देते हुए, वो वजन ज्यादा है कि नहीं, वो सब चेक करके हम बता सकते हैं कि रफली आपकी चांस क्या है प्रेग्नेंट होने के लिए। अभी जैसे हमारे ये ओन केसेस है हमारे गायनेक वार्ड में, ओके। नाउ वी हैव कंपेयर्ड द वेट ऑफ द पेशेंट, और ये पेशेंट्स का हमने एक्चुअली ये IUI किया हुआ है। जो नॉर्मल वेट पेशेंट थी, ये ग्रीन बार में देखो सक्सेस रेट क्या है, ऑलमोस्ट 30%। पर्पल बार में है 27%, ये डिलीवरी रेट है, और नॉर्मल वेट में 4.7%। अगर पेशेंट मिसकैरेज रेट इज 4.7%। अगर पेशेंट का वेट ज्यादा है मींस वी काउंट द BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, उसका एक फॉर्मूला रहता है। अगर BMI 25 के नीचे है वी से नॉर्मल वेट, इफ इट इज बिटवीन 25 and 30 वी से ओवरवेट, और 30 के ऊपर है तो ओबीस। तो अगर BMI 25 और 30 के बीच में है तो ये ग्रीन बार देखिए, द प्रेगनेंसी रेट कम्स डाउन from 29.7 means 30% to about 23-24%. The live birth rate means जो डिलीवरी बच्चे की होती है, here it is 27%, here it comes down to 18 to 19%. मिसकैरेज रेट सेम रहता है। अगर पेशेंट ओबीज है, मतलब 30 BMI 30 and above, उसमें the pregnancy rate here is say almost 17%. The live birth rate is 9%, but miscarriage rate is going up. ठीक है। So जैसे पेशेंट वजन बढ़ते जाता है, उसकी प्रेगनेंसी रेट कम होते जाती है, उसका लाइव बर्थ रेट कम हो जाता है, और मिसकैरेज रेट बढ़ते जाता है। This is our own experience, which is matching with everywhere else in the world. वो IUI से ऐसे होता है। अभी अगर हम IVF करें तो इन नॉर्मल वेट पेशेंट BMI जिसका 25 से कम है, प्रेगनेंसी रेट गोज अप टू 56% पर साइकिल, और इसका लाइव बर्थ रेट इज 52.58 मींस ऑलमोस्ट 53%, और मिसकैरेज रेट इज 1.5%। जब ओवरवेट है मींस BMI between 25 to 30, from 56% the pregnancy rate comes down to 43%, and when they are obese the pregnancy rate comes down to 32%. Same story with the miscarriage rate. Normal में 1.5%, here it is 2.6%, and here it is 6.9, almost 7%. Means जैसे वजन बढ़ता है, even with IVF, the miscarriage rate goes up, success rate goes down.
सो मतलब ओबेसिटी इज अगेंस्ट यू जब आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं. सो हायर द वेट, लोअर इज द प्रेगनेंसी रेट बोथ आफ्टर IUI एंड IVF, और हायर द वेट हायर इज द मिसकैरेज रेट. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी. अब भाई अभी आप पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसको क्या तकलीफ हो सकती है? करंट रिसर्च में ये दिखता है कि अगर आप 700, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी डन वेयर 720 women जिसको PCOS है, उन्होंने 4505 पेशेंट जो जिसको PCOS नहीं है उनको कंपेयर किया, और जब कंपेयर किया उन्होंने देखा कि जो लेडीज को PCOS है उनको 3 times हायर चांस को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाएगी, 3.5 times हायर चांस के उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एंड 3 times हायर चांस ऑफ लूजिंग द बेबी, मतलब प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है जिसमें मिसकैरेज हो सकता है या तो और भी कॉम्प्लिकेशंस बच्चे का हो सकता है. नाउ हियर दे फाउंड दैट जो पेशेंट्स को PCOS है और प्रेग्नेंट हो गई उसको एनी टाइम चांस 2.5 times इंक्रीज चांस है कि बच्चे को ICU में एडमिट करना पड़ेगा, और 1.5 time चांस है प्रीमेच्योरिटी का. अभी ICU में क्यों एडमिट करते हैं? क्योंकि समझो बच्चा प्रीमेच्योर हुआ, ICU में जाएगा. अगर मदर को डायबिटीज हो गया, मदर को कुछ प्रॉब्लम हो गया प्रेगनेंसी में, तो बच्चे को ICU में डालेंगे. नॉट दैट सब पेशेंट को होगा. जो पेशेंट्स अच्छी तरह से प्रेगनेंसी में कंट्रोल करती है सब, means you should not get frightened. What we are trying to say is कि अगर PCO पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट हो गई, she must take proper care through the pregnancy. उसे खुद बराबर डॉक्टर्स के पास बराबर से जाना चाहिए, ज्यादा टेस्ट करने चाहिए शुगर के लिए, ज्यादा चेकअप करना चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए, ज्यादा चेकअप करना चाहिए टू मेक श्योर कि वो प्रीमेच्योरिटी मतलब बच्चा प्रीमेच्योर नहीं आने वाला है. ऑल दीज थिंग्स द डॉक्टर विल सी. मगर आप पेशेंट जाएगी तो होगा. कभी कभी पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स बोलेंगे इतनी क्या जरूरत है जल्दी जल्दी जाने के लिए डॉक्टर के पास, जाने की जरूरत नहीं है. नहीं, PCOS पेशेंट्स हैव टू बी मॉनिटर्ड वेरी स्ट्रिक्टली, तो जैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो. और जो बच्चे पैदा होते हैं PCOS मदर्स के भी, अगर मदर के जो हार्मोन्स है बराबर नहीं है, अगर उसका वजन प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी बच्चे को तकलीफ हो सकती है जब वो बच्चा पैदा होता है. अगर आप इंडिया में देखो या किधर भी देखो, प्रेगनेंसी में PCOS पेशेंट्स को 22% चांस है उसको डायबिटीज होगी. मींस 1 out of 5 पेशेंट्स को डायबिटीज हो जाती है. और जो नॉर्मल विमेन है उसमें से 6%, नॉट दैट दे ऑल गेट डायबिटीज, मगर चांस है डायबिटीज का, क्योंकि जब हम उनका शुगर लेवल्स करते हैं ग्लूकोज देने के बाद भी कम टू नो, और अगर हम उसी टाइम चेक करें कि ये हो रहा है, वी कैन कंट्रोल इट एंड वी कैन प्रिवेंट इट. उसको ज्यादा बढ़ने से हम रोक सकते हैं. इसके लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है. तो ये सब चीज करना हमें प्रेगनेंसी में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हमारे इंडियन विमेन में है, एशियन विमेन में डायबिटीज का चांस 5 times हायर है. अमेरिकन विमेन में 4 times हायर इन PCOS विमेन कंपेयर टू नॉन PCOS. यूरोपियन विमेन में 3 times हायर. What it means is कि in Indian women there is a higher chance of getting diabetes. जो हमारे दुनिया भर में China has the highest chance of getting diabetes. India is the second highest center for diabetes. इसके लिए हमारे कंट्री में डायबिटीज बहुत ज्यादा है, और PCOS women को ज्यादा डायबिटीज होने का चांस है. इसके लिए यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द शुगर्स. नाउ वी कम टू द 40+ women. जो 40+ हो गई पेशेंट्स, उनको क्या होता है, जिसको PCOS हुआ है उनको क्या तकलीफ हो सकती है. तो अगर देखा जाए तो जैसे उम्र बढ़ती है 40 के ऊपर, जैसे उनका वजन बढ़ते जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ एज बट बिकॉज जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है. हम उतना ही खाएंगे मगर हमारा वजन उतना कम नहीं होगा. वी हैव टू डू मोर एक्सरसाइज. और जब वजन बढ़ता है हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं, और जैसे मेनोपॉज आने वाला है वैसे भी पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं, और उसमें कभी कभी पीरियड
2-3 महीने के बाद आता है और हेवी ब्लीडिंग होता है, उसके वजह से हम सिर्फ उनको कंट्रोल कर सकते हैं विद प्रॉपर मेडिकेशन, और फिर उसको मतलब यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है अननेसेसरी। कभी कभी कोई पेशेंट्स रहते हैं जब हेवी ब्लीडिंग होता है 2 बार 3 बार, दे जस्ट गो टू द डॉक्टर, फिर डॉक्टर बोलता है यूट्रस निकाल दो। इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी पेशेंट। ऑन द कॉन्ट्री वो पेशेंट्स का हमें बराबर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है क्यों ब्लीडिंग हैवी है, और उसको हम अगर दवाई दें सही तरीके से, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट we can manage just giving medicine without taking out the uterus. तो ये वजन कम करने का प्रॉब्लम चालू ही रहता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मैंने बात की वो भी होता है, और कैंसर होने का प्रॉब्लम। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इंक्रीज्ड वेट, ये सब चीज होने का चांस रहता है, और ये सब चीज से हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है। तो अगर ऐसे हुआ, डायबिटीज हुआ, ठीक है डायबिटीज है, कंट्रोल हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, मगर वो शुगर जो अंदर बॉडी में बढ़ते जाता है उससे हर ऑर्गन खराब होता है। एज द शुगर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल यू कैन गो ब्लाइंड, किडनी फेलियर हो सकता है, पैंक्रियाटिक फेलियर हो सकता है, और हार्ट अटैक हो सकता है, ये सब चीज होने का चांस बढ़ जाता है। इसके लिए वी हैव टू कीप आवर वेट अंडर कंट्रोल, we have to keep blood pressure under control, cholesterol under control and diabetes under control. तो ये सब चीज जब होती है, you see metabolic syndrome हम उसको बोलते हैं, जब ये 5 चीज में से अगर 3 चीज भी है तो हम उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। उससे ये देखिए फर्क देखिए कि ये लेडी जो है इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, शी इज गॉट ऑल द फैट हियर ऑन द टमी, और यहाँ पे जो फैट है इसका हिप्स पे है, नॉट ऑन द टमी। जो टमी फैट है दैट इज वेरी बैड फॉर द हार्ट, एंड दैट इज द फैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ। फिर इसमें रिस्क फैक्टर अगेन यही है, जैसे उम्र बढ़ती है घर में कोई ना कोई होता है हेल्प करने के लिए, कुछ फिजिकल हमारी एक्सरसाइज कम हो जाती है, फैट ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं, और ये सब फैट लिवर में जमा हो जाती है और पेट में जमा होती है, उससे कार्डियक एक्टिव फेलियर होने का चांस ज्यादा है। अगर आप मेन और विमेन को कंपेयर करो, मेन में ओवरवेट और ओबेसिटी इज प्रेजेंट इन 12 to 54% मेन, और विमेन में इट इज बिटवीन 15 to 61%, और ये मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 40+ मेन एंड विमेन। डायबिटीज मेन में 6% में है डायबिटीज, विमेन में 14%। सो इन शॉर्ट इंडियन विमेन हैव मोर प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक। दो हम समझते हैं कि जब 40 और 50 की उम्र होती है हमें लगता है कि men have better more heart attack as compared to women, पर इसलिए क्योंकि women को एस्ट्रोजन हार्मोन जो बॉडी में रहता है वो उसे प्रोटेक्शन देता है। बट जब मेनोपॉज हो जाता है 50 के बाद, लेडीज का जो मेनोपॉज हो जाता है तब एस्ट्रोजन बॉडी में कम हो जाती है, मींस ऑलमोस्ट बिकम्स निल। तो उससे जो प्रोटेक्शन रहता है एस्ट्रोजन से, वो प्रोटेक्शन निकल जाती है, और जितना रिस्क रहता है हार्ट के लिए जो मेन को है रिस्क, उतनी रिस्क विमेन को भी होती है। और इसलिए वी हैव टू टेक केयर एंड मेक श्योर कि ये वजन और डायबिटीज हमें हमारे बॉडी से कंप्लीटली निकालना चाहिए। अगर फिर कमिंग टू कैंसर, अगर पेशेंट को इरेगुलर पीरियड है या हेवी पीरियड है, हो सकता है कि उसके बच्चेदानी में मस्सा हो गया हो या लाइनिंग जारी हो गई हो, और अगर उसको हम ऐसे ही रखें और उसका कुछ नहीं करें, उसमें आगे बढ़ के कैंसर होने का चांस है। इसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को मिलेंगे, तो अगर वो जब सोनोग्राफी करेंगे उन्हें दिखेगा कि अगर बच्चेदानी के अंदर मस्सा है, जिसको हम ये पॉलिप बोलते हैं, उसको हम दूरबीन से निकाल सकते हैं। एक दूरबीन नीचे से हम लोग बच्चेदानी में डालते हैं, एक ही दिन का काम रहता है। अगर पॉलिप है उसको निकाल देते हैं और अंदर से उसी टाइम में थैली साफ कर देते हैं, दूरबीन से वो पॉलिप निकाल देते हैं, उसको बायोप्सी करते हैं, और अगर सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक डिवाइस रहता है जिसे हम मायरीना बोलते हैं, वो बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं। उससे ये पॉलिप वापस नहीं होता है और फिर बच्चेदानी निकालने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर ये नहीं दिया इसको और हम रेगुलर चेकअप के लिए नहीं गए हर महीने, तो इसमें कैंसर होने का चांस रहता है।
तो जो भी लेडीज को इरेगुलर पीरियड है या हेवी पीरियड है, दे मस्ट सी द गायनेकोलॉजिस्ट एवरी ईयर। और अगर पीसीओएस है, 40+ वुमेन को तो हर साल दे मस्ट हैव अ चेकअप, पीसीओएस है कि नहीं है। मगर जिसको पीसीओएस है और उसको और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, then she needs to see the doctor more often. But annual checkup for women above 40 is a must. Must go for checkup. It's very, very important. फिर जो मेंटल हेल्थ इशू है, मैंने बताया था लास्ट, जब एडोलेसेंट गर्ल्स का है, उसमें नींद नहीं आती है बराबर को रात में, और अगर वजन बहुत ज्यादा है तो डिस्टर्ब स्लीप होती है। वो डिस्टर्ब स्लीप में स्नोरिंग होता है, और वो स्नोरिंग में ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि ऑक्सीजन अंदर जाता ही नहीं है, और देन द पेशेंट गेट्स अप सडनली टू ब्रीथ। कभी कभी नींद में प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है एंड द पेशेंट में नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स ये सब हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। तो 40+ वुमेन के लिए गोल्स ऑफ मैनेजमेंट ये है कि हमें रिस्क फैक्टर देखने चाहिए हार्ट प्रॉब्लम के लिए। ओबेसिटी मतलब वजन ज्यादा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी बैड। High cholesterol is bad, risk factor. Hypertension means blood pressure is a risk factor. Impaired glucose tolerance मतलब diabetes या pre-diabetic state. कुछ exercise नहीं करे तो भी, and again over and above all this, जिसको PCOS है उनको भी ज्यादा रिस्क रहता है हार्ट डिजीज का। So all women who have got these problems, उनको रिस्क फैक्टर रहता है हार्ट प्रॉब्लम का। So इसलिए हर औरत को और हर PCOS वुमेन को हर साल उनका कोलेस्ट्रॉल चेक, शुगर चेक, ब्लड प्रेशर चेक, एक सोनोग्राफी यूट्रस का, और वेस्ट मेजरमेंट करना जरूरी है। और वेस्ट मेजरमेंट को हमें ये पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। वेस्ट अगर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है देन इट मींस कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इसलिए बीएमआई मतलब वेट और वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वंस अ ईयर। So the take home messages from today's talk is, first of all, हमें करेक्ट डायग्नोसिस करना चाहिए पीसीओएस का। अगर हम गलत पर्सन को बोलेंगे कि आपको पीसीओएस है सिर्फ सोनोग्राफी का रिपोर्ट देख के, इट इज रॉन्ग टू से कि पीसीओएस है, क्योंकि अगर हम गलत करेक्ट डायग्नोसिस करेंगे तो पेशेंट को हम अननेसेसरी रिस्क फैक्टर में डाल देते हैं। इसलिए करेक्ट डायग्नोसिस करना जरूरी है, क्योंकि हम वो पेशेंट को बराबर से ध्यान से एनुअली चेकअप करें। और जो प्रॉब्लम हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं पेशेंट्स को। सब पेशेंट को सब प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई पेशेंट को पीरियड इरेगुलर होता है, किसको कॉस्मेटिक इश्यूज होते हैं, किसको इनफर्टिलिटी होता है, किसको डायबिटीज होती है, किसको हाई ब्लड प्रेशर होता है। एनीथिंग, एनी पेशेंट, डिफरेंट पेशेंट्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इसलिए हम इसे सिंड्रोम बोलते हैं और डिजीज नहीं बोलते हैं। और मैनेजमेंट जो होती है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर है। जैसे पेशेंट आई हमारे पास, उसकी जो भी तकलीफें हैं उसको दूर करना जरूरी है, और पीसीओएस को कंट्रोल करना जरूरी है। वजन को कम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा होते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करना जरूरी है, देखने के लिए कि उसको, पेशेंट को ब्लड प्रेशर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं हो रहा है, कुछ कैंसर तो नहीं हो रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप चेकिंग ऑल दिस, एंड प्रेगनेंसी में ज्यादा चेकिंग करना जरूरी है। तो इसलिए हमने ये पीसीओएस सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई है, और ये एक सोसाइटी है डॉक्टर्स की, जिसमें जो भी डॉक्टर पीसीओएस पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, बैरियाट्रिक सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी, वो सब हमारे मेंबर्स हैं। और इसके थ्रू हम फिजिशियंस को या डॉक्टर्स को अपडेट या लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स करते हैं। हमारी ये वेबसाइट है पीसीओएस सोसाइटी ऑफ इंडिया की। वो हमारी वेबसाइट पे हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के लिए है। दूसरा, एक पीसीओएस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने क्लब पीसीओएस के जरिए हम लोग पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं। ये यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं दिस साल में, एंड वी हैव कम अप टू 5 वीडियोस एंड दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ये लिंक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिंक्स ओपन करना। सिर्फ 2 के 3 मिनट के वीडियो हैं, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, आप प्लीज देख लीजिए। और हर वी आर प्लानिंग टू मेक अबाउट 12 वीडियोस, अभी 5 तक आए हैं और बढ़ेंगे।
और इसके इट्स समथिंग लाइक दिस. अगर आप ये वीडियो देखो, दिस इज हाउ इट इज. Just share a little bit. I'm sorry the music is not playing, but it is something like this where information है नीचे और थोड़ा म्यूजिक भी है and there are slides like this. तो उसमें आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सिर्फ 2 के 3 मिनट के ईच वीडियो पे. और ये कॉन्कर पीसीओएस एक वेबसाइट है, पोर्टल है, जिससे हम पीसीओएस पेशेंट्स को कनेक्ट करते हैं. इसमें इंस्टा लाइव में डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग टू द पेशेंट्स, पेशेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस and we cover it. It's a very nice website. Have a look at it and we'll be able to engage and ask all your questions. So ये बहुत सारी चीजें हैं and these are the various things which are happening today in the world, and I hope I have given you enough information and I'm happy to answer any questions. I'm not able to hear. Shashi ji, please unmute yourself. Okay. Aditi, can you please unmute Thank Dr. you. Shashi Mandot? Truly wonderful, Doctor. Thank you, Dr. Duru, for this much needed information and well explanatory session. And now the common queries from our audience, some myths, some truths, some doubts. Let's listen to them and answer them. PCOD, as defined so clearly by Dr. Duru, a hormonal disorder amongst the young women which affect their menstrual cycle and reproduction. So the first question that we got from Jayashree Bhandari, she just wants to know, is it a lifelong disease? Again, I would not call it a disease. I would call it a syndrome. And it is something, say, when we say it's a disease, means we, like say, for example, somebody's got tuberculosis. It's a disease, we know what is causing the disease and we know what is the answer or what is the treatment. A syndrome is something where we still don't know what causes it. We know that 10% patients हैं ऐसे के जिसे genetically PCOS होता है. मगर आज the latest concept is कि जब बच्चा माँ के पेट में है, यूट्रस में है, उस टाइम पे हार्मोन्स के वजह से, कुछ अलग हार्मोन्स के वजह से बच्चे को PCOS होने का चांस होता है. तो in short, आज we still don't know कि क्यों PCOS होता है, and that is why we don't have a cure. But हमें इतना पता है हम उसे कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं. हमारे पास एक और क्वेरी आई है. वो 45 इयर्स की हैं, उनके 2 बच्चे हैं. 5 साल पहले PCOS डायग्नोज हुआ था और एडल्ट एक्ने भी है. उनकी डॉक्टर कहती है कि आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लें, साइड इफेक्ट होगा. तो वो अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हैं. सो इज इट सेफ और व्हाट शुड शी डू नाउ? नो, पर ट्रीटमेंट किस लिए ले रहे हैं? PCOS के ही. नो, बट उनका प्रॉब्लम क्या है? See, it's like this, as I told you, PCOS अलग-अलग तरीके से होता है. तो हम किस चीज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए. अगर पेशेंट को हैवी पीरियड है तो हमें उस तरह से इलाज करना चाहिए. बट we cannot cure the condition. It is like this कि अगर किसको PCOS है, हमने दवा दे दी, PCOS चले गया, ऐसे नहीं है. So हर पेशेंट की ट्रीटमेंट will depend कि उसे क्या तकलीफ है. Yeah, very true, very true. Some more query is it permanently cured by yoga or exercise? See, yoga से definitely patient को mental stress कम होती है. That is proved. It can relieve stress. That is true.
मगर योगा से वजन कम नहीं होता है। जो एक्सरसाइज रहती है, जिससे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में बताया कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे वजन कम हो सकता है। सो बोथ आर हेल्पफुल, वन इज फॉर मेंटल हेल्थ एंड वन इज फॉर फिजिकल हेल्थ। दोनों चीज की जरूरत है। ओके, नूपुर जी पूछना चाह रही हैं कि पीसीओएस क्या मेनोपॉज का कारण बन सकता है अर्ली? नो, मेनोपॉज पीसीओएस के वजह से नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पीसीओएस पेशेंट्स के ओवरीज में बहुत सारे एग्स होते हैं। मैंने जैसे बताया, एक एक ओवरी में एक टाइम पे 10-12 एग्स के ऊपर होता है। वी हैव हैड पेशेंट्स जिसके 20-25 एग्स एक एक ओवरी में है, तो वो ओवरीज लार्ज होती हैं और उनका पीरियड थोड़ा देर से जाता है। बट पेशेंट्स हु हैव गॉट अर्ली मेनोपॉज, उनकी ओवरीज में कम एग्स होते हैं और इसलिए उनका मेनोपॉज जल्दी होता है। So in short, God has made us like this कि किसको बहुत ज्यादा दे दिया है और किसको कम दे दिया है और किसको नॉर्मल दिया है। मींस जिसके ओवरीज नॉर्मल है उसमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ एग्स रहते हैं, जिसको पीसीओएस है उसको बहुत ज्यादा एग्स होते हैं, और जिसको प्रीमेच्योर या जल्दी मेनोपॉज होता है उसको कम एग्स होते हैं ओवरीज में। और हर औरत जब जन्म लेती है, she has got a fixed amount of eggs in her ovaries. उसको ज्यादा नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। Okay. This query is from Komal. वो जानना चाह रही हैं कि अगर मदर को पीसीओएस है तो क्या डॉटर को भी होगा या होने के चांसेस हैं? अगर पीसीओएस है तो डॉटर को भी होगा क्या? Is it hereditary? 10% chance, 10%, 10%। Okay. स्मिता जी जानना चाह रही हैं कि इनकी 2 डॉटर्स हैं, एक 20 साल की है और एक 17 साल की, और इनको शुरू से ही बहुत इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो वो जानना चाह रही हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उनको डॉक्टर के पास लेना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। खुशबू जैन का ये क्वेश्चन है कि वो 30 साल की हैं और उनको लूज मोशंस की काफी प्रॉब्लम है पीरियड्स के टाइम, मूड्स के स्विंग्स भी होते हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या इलाज है। अगर लूज मोशन होते हैं, इट इज पॉसिबल के पीरियड के टाइम पे कोई लेडीज को जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है पीरियड के टाइम पे, तो इंटेस्टाइन भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। मगर एक टाइम शी मस्ट सी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, पता लगाने के लिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसके वजह से ये लूज मोशन पीरियड के टाइम हो रहा है। एक और हमारे पास क्वेरी आई है, कैन स्ट्रेस कॉज पॉलीसिस्टिक ओवरीज? पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है पहले, फिर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होने से पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं होता, उल्टा होता है। राइट? An interesting query is, does it make you dry? Not really, not PCOS. PCOS से ड्राई नहीं होते हैं। अगर मेनोपॉज हो जाता है कि कोई ईस्ट्रोजन बॉडी जो फीमेल हार्मोन होता है वो अगर कोई भी वजह से कम है बॉडी में, देन ड्राइनेस कम्स इन। तो यूजुअली मेनोपॉज वुमेन जो जिसका पीरियड बंद हो जाता है उनको ड्राइनेस होने का ज्यादा चांस है, नॉट विद PCOS. Yeah, one of our young friend wants to know, is there any male version of this common disorder? Any male version? मतलब मेल वर्जन मीन्स जो मेन को हो सकता? Yeah. मीन्स मेन को हो सकता है ऐसे? Yes, हाँ जी. It can happen in men because they will have early
हेयर लॉस मतलब वो बाल जल्दी निकल जाते हैं हेयर सर के ऊपर से, दे आर 25-26 years old, वजन ज्यादा हो जाता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और बाल झड़ने लगते हैं वेरी अर्ली इन लाइफ, तो वो मेल वर्जन कहते हैं. Can it start later in life? Not really, not really. PCOS is something, what I have seen is that जो लड़कियां छोटी हैं, by 13-14, अगर उनका जो वजन उसी टाइम बढ़ते गए, they are the ones who are most affected. अभी yesterday I saw a girl who's just 12 years old, सिर्फ 12 साल की लड़की, और उसका वजन means her waistline was already 88 centimeters. Young girl, and she had all the problems, all the acanthosis, all the इतने बाल नहीं थे फेस के ऊपर, but she had irregular periods, too much weight. But usually ये प्रॉब्लम कब होता है जब लड़कियों का वजन ज्यादा बढ़ जाता है, and we see it more in early life rather than in later life. एक और क्वेरी है, मैं पीसीओएस से पीड़ित हूँ और मेरा पीरियड 3 महीने में एक बार आता है, पेट लगातार बढ़ रहा है तो और बाल झड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ? First thing is see the doctor. Number 1, see the gynecologist. Second is वो periods help करेंगे. Second thing is of course exercise. Third is eat healthy, no sweets, no मिठाई, no sugar, no coffee, chocolates. वो सब बंद कर देना, वजन कम करना, and the doctor will help with the medication. Okay. One more query here. I'm 43. I have polycystic in my ovaries, have hair on my chin, and overweight. Should I take hormone or what should I do? So it's like this, that the patient must see the doctor, because जब तक हमारे पास diagnosis नहीं है, we cannot advise without thinking. But in short, अगर hair है face के ऊपर, period irregular है, वजन बढ़ रहा है, standard answer will be lose the weight, see the doctor, find out if there's any other problem. क्योंकि जब period irregular होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि PCOS है, उसके अलग अलग कारण होते हैं. हो सकता है कि थायराइड हार्मोन नहीं बराबर है, इसके लिए पीरियड नहीं आ रहा है. हो सकता है कि प्रोलैक्टिन हाई हो, इसके लिए पीरियड नहीं आता है. हो सकता है कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो, वो भी हो सकता है. देयर आर मेनी रीजंस फॉर नॉट गेटिंग द पीरियड. बट सिंस हम पीसीओएस के ऊपर बात कर रहे थे, आई वाज टेलिंग यू ऑल कि वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैपेंस इज इरेगुलर पीरियड. बराबर? वेरी ट्रू. एक्चुअली जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं और डिटेल में अपने सिम्टम्स नहीं बताएंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतने सारे कारण हैं इनके. एक और आया है, बाय इनटेकिंग, एक क्वेश्चन और आया है, बाय इनटेकिंग एप्पल साइडर विनेगर रेगुलर फॉर एसिडिक बॉडी, डज इट वर्क फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस इन हार्मोन्स? No proof. Yeah. That is not a proof. That is marketing strategy. Yeah. Right. Yeah, one of very young girl, she is just confessing and saying, is PCOS my fault that I have developed this? No. It is not her fault. It is just God has, it's like this. All of us will have some disorder in life. Somebody is born without eyes, without eyesight. Somebody is born without mental development. Somebody is born without physical development. There are so many things people are born with. किसको थायराइड का प्रॉब्लम है, किसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो किसको पीसीओएस का प्रॉब्लम है. So there is nothing to be worried about it. सिर्फ इतना है कि आप कंट्रोल में रखो सब कुछ, फिर there will be no problem at all. It is like this.
कि जैसे लोग they get scared of diabetes, अरे डायबिटीज है, डायबिटीज है, अरे डायबिटीज है तो है, उसको आप कंट्रोल में रखो तो कुछ नहीं होगा. But if you don't keep it under control, you'll have a problem. So this is all what we say, that you keep your disorders under control. और वो करने के लिए you have to see the doctor. See, one thing I've noticed as a gynecologist, so many of my patients डिलीवरी करके जाते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है चेकअप के लिए. Then they come straight away at 45, 46 years old. तब बताते हैं अभी पीरियड का प्रॉब्लम है, अभी हैवी ब्लीडिंग है. And then you examine and you find so many problems. So एक डिलीवरी हो गई उसका मतलब नहीं that you must go for a checkup once a year. जैसे हम हमेशा हमारे शुगर टेस्ट करते हैं, we do everything once a year. तो at least अंदर का जो है, जो भी, I mean only the gynec can examine you ना. That is what you have. जैसे dental checkup, every year we must do a dental checkup, every year we must do an eye checkup. It's like this, every year we must do a full checkup. Okay. Yeah, what most of us are curious to know, is it possible to test this at home, self-diagnosis sort? हालांकि आपने हमें काफी सिम्टम्स बताए हैं, लेकिन फिर भी बाल सभी के झड़ते रहते हैं. वो नहीं, बाल झड़ते रहना is can happen because of अगर आप strict diet करते हो तो बाल झड़ेंगे, आपकी डिलीवरी हो गई तो बाल झड़ेंगे, any stress in life बाल झड़ेंगे. But what I'm talking about is getting a bald patch. एक bald patch हो जाता है सर के ऊपर. That is not normal. Correct? So we can self-diagnose at our home. You can diagnose, but you have to confirm the diagnosis. अगर समझो एक लड़की है, उसको पीरियड इरेगुलर है और उसको पिंपल्स हैं, ओके? अभी कितने टीनेजर्स को पिंपल्स हो सकते हैं? कितने टीनेजर्स को इरेगुलर पीरियड कैन बी बिकॉज ऑफ थायराइड प्रॉब्लम? फिर कैसे बोलेंगे PCOS है? It is not possible. You can suspect, but you cannot confirm the diagnosis. Yeah, somebody wants to know, can I reverse PCOS naturally? Weight loss and exercise, yes. Yeah. If अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करने से आपका PCOS रिवर्स हो सकता है. And that's also power yoga and brisk walking, not a simple one. Yes. Yeah. So that's very Correct. मैं तो मन को समझा दिया, घूम लिए, हो गया. But this is not the remedy. Yeah. एक और क्वेश्चन है कि क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें कारगर है? See, I'm not a homeopath, so I'm not the right person to advise on homeopathy. और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे एलोपैथी में हमारे जो भी एविडेंसेस रहती हैं, मींस इट इज बेस्ड प्योरली ऑन रिसर्च. रिसर्च में हमें क्या दिखता है, कौन सी दवा काम करती है, वो कैसे काम करती है. वी स्टडी ऑन एनिमल्स, वी डू लेवल्स. 10 साल लगते हैं एक ड्रग को बाहर आने के लिए, जब से वो इन्वेंशन होती है. बट विथ होम्योपैथी एंड विथ आयुर्वेदा वी डोंट नो कि इस टाइप का रिसर्च होता है कि नहीं, बिकॉज आई रियली डोंट नो मच अबाउट होम्योपैथी. And anybody wants to ask any question? Okay, I think हमें इतना इंफॉर्मेशन मिली है आज कि अभी हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं. और कितने मिथ था, कितना कुछ कि हमने वॉक कर लिया या हमारा ये सब कुछ तो होता है, नॉर्मल है, लेकिन आज पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है. एंड ऐसा लगता है कि काफी लोगों को ये सिम्टम्स हैं. सो well, my sincere advice to each and everyone who is attending today's webinar, please go to your gynec and check and get yourself checked. It's very necessary, and especially I'm going to do this, definitely.
Yeah, thank you, Yeah. Dr. Duru. It's a fantastic session, very informative. I Thank now you. Thank you so request much. our Chief Secretary, Sonali Dugal, to propose a vote of thanks. Thank you, Shashi ji. Jito Ladies Wing Director in charge Sumanji Bachawat, respected Chairperson Sunita ji Bohra, Program Convener Garima ji Sipani Ostwal, Project Co-Convener Dr. Shashi ji Mandod, Dr. Vijay Lakshmi ji Ganurkar, who helped us in coordinating with Dr. Durusha, valued guests, ladies and gentlemen. I must place on record, mention our deep sense of appreciation to Dr. Duruji Shah for sensitizing us on an invisible syndrome like PCOD. This is an underdiagnosed endocrine disorder that is poorly understood. Self-empowerment by realizing the need to modify the lifestyle and diet changes supported by timely and appropriate medical intervention will be a blessing in disguise to ease the associated pain. On behalf of JLW, I wish to thank you all, and specifically those who had the presence of mind to choose a relatable topic on a women health issue that is the crucial need at the moment. A big thank you to Shweta and Aditi too. Thank you once and again. Thank you very much to all of you. That ends our webinar. But before we leave, let's all stand for national anthem.